आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। इस कार्यक्रम के किसी भी हिस्से में आपसे क्रिकेट पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर देने वाले को हमारी ओर से आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun. An exciting day as far as England is concerned. They have been completely clinical in today's game, which was played in Sydney, Australia, as part of 2022 T20 World Cup. It was the second semi-final, which was highly expected that it could be a close game, but didn't happen. India have been outplayed in all three departments by England. It was, as I said earlier, clinical performance, and they made it through into the finals. Will play against Pakistan on Sunday, November 13th at 1:30 p.m. in MCG Melbourne Cricket Ground in Australia. Capacity of 90,000 plus people will be watching that match. But I reckon it will be little lesser if it would have been India-Pakistan. There will be more and more crowd, but didn't happen. India is being defeated very badly, actually, by 10 wickets. It was never expected that India will be playing like this in such a crucial game, but it has been history or story so far from 2013 till this date. Who might have forgotten the game between India and New Zealand in T20, in 50-50. It was 2019 when Dhoni was in the side. India is being made their backpack from semi-finals against New Zealand. After Champions Trophy, we have not been a winner of any ICC tournament, which is actually a shocking news, and even a news of what I can say worry. Indian management team will have to look forward, but before we move ahead, discuss more, it will be only fair to welcome Mr. Ram Kishan ji on the show for this discussion. जी बहुत बहुत धन्यवाद. Now let's talk about the match, how it folded up for England. First, which was a very important aspect as far as a toss was concerned, it was England who won the toss, and they have decided to field first. It means put India into bat, and then, as usual, didn't get the start what we were expecting, actually, what fans would have expected from KL Rahul and Rohit Sharma. As I said yesterday, it will be a crucial game in the show we discussed, but unfortunately, it was just a game for them because Rahul got dismissed very early, 9 for 1 India. और ये ना अब तक की हिस्ट्री रही है. And then after Rohit Sharma played some shot, but again 27 of 28, which I don't think is a good score anyhow. If you are playing 20-30 balls, it means you'll have to score at least 40-45 runs to put yourself on a driver's seat. But didn't happen. And then Kohli came across, as always, solid. But again, it was not enough. 40 balls, 50 plus runs, 50 runs only, and got out in the 18th over. That was a very crucial juncture of the game. If he would have stayed there, we would have got some more runs in the end. Surya Kumar Yadav, the all responsible for playing, good shots or rotating the strikes, striking hard as well, but didn't happen. He perishes early, and then a storm came, actually. Hardik Pandya, hard-hitting Pandya, played a fantastic knock of 60 plus runs, but again, it was not proving in a good cause. Nevertheless, anyhow, India managed to score 168 in 20 overs, which was allotted to them, and
for the loss of 5 wickets, if I'm not wrong. And in reply, when England came out to bat, 169 was looking a very small target. At one stage of match, or I should say at one stage of point, it was looking that England will chase it down inside 12-13 overs. But I'll congratulate India actually for taking it to 16th over. The way they were playing, it was looking like that India will be, going back to their home very early. Didn't happen. India lost the game by 10 wickets. That is absolutely blunder of a mistake, I should say. Silly, sloppy, whatever you want to use, you can simply use. India played like that. Nonetheless, we still will back our team. We love cricket. We love India. It means we'll have to support as well. Yes, I understand it's a very, very difficult defeat to digest, but we cannot do anything actually. Whatever had happened has already taken its place. Now it will be England and Pakistan who will be in the cluster, what I can say, in the sale contest of the game that is final. Let's see who's going to hold their nerves. Alex Hales played a fantastic knock, 86, blistering knock to be honest. And Butler has accompanied him very beautifully by playing a knock of 80 runs. So that's how England managed to win the match without losing any wickets. So there is nothing to discuss about India's bowling actually. From England point of view, Chris Wokes picked up 2 wickets. Rashid, I think, taken a wicket, and some other might have taken a wicket apiece. So that was the summary for you from match point of view. Now let's start the discussion with our guest. क्या पूछूं? पूछने के लिए बहुत कुछ है. शुरू कहां से करूं मुझे खुद नहीं याद आ रहा है. चलो, क्या आपको लगता है कि भारत ने कहीं टीम चयन करने में कुछ गलती की? पहले इसी पर आऊंगा, उसके बाद और चीजों पर बाद में आऊंगा मैं. जी हाँ, बिल्कुल. जैसा कि अंदेशा था, मुझे भी था, कई क्रिकेट पंडितों को भी था, और हुआ भी वही. मैं बार बार कह रहा था, न मालूम क्यों केएल राहुल को इतने मौके दिए जा रहे हैं. तो 50 उन्होंने किए, मगर जो 50 उन्होंने किए, वो 50 बांग्लादेश के खिलाफ आया, वो 50 जिम्बाब्वे के खिलाफ आया. और न मालूम क्यों मेरी धड़कनें बढ़ी जा रही थी. मैं बार बार ये सोच रहा था, मेरे मन में यही चल रहा था कि केएल राहुल की जगह जब विकेट हमें जल्दी खोना ही है, तो हम ऋषभ पंत से पारी का आगाज क्यों नहीं करा लेते. लेकिन जिसका डर था वही हुआ, और केएल राहुल आज फिर सस्ते में आउट हुए. वो अच्छे तेज गेंदबाजों के खिलाफ बार बार संघर्ष करते रहे, और आज तो मार्कवुड नहीं थे, उनकी जगह जॉर्डन को खिलाया. जॉर्डन ने भी 3 विकेट लिए, 43 रन देके. तो खराब टीम सिलेक्शन. आर अश्विन को अब बल्लेबाजी के बलबूते पे कब तक ढोते रहेंगे? मैं बार बार कहता हूं, आर अश्विन, मैं मानता हूं आर अश्विन ने मैच जिताए हैं, मैं मानता हूं आर अश्विन आपको बैटिंग नीचे दे सकते हैं. यदि आपको बैटिंग ही चाहिए तो आप क्यों आर अश्विन के पीछे जा रहे हैं? आप शार्दुल ठाकुर को खिला लीजिए, उनके पास कटर्स हैं. आप ने चहल को नहीं खिलाया, न मालूम क्यों, मुझे भी नहीं पता लगा कि आखिर यूजी चहल को क्यों नहीं खिलाया गया. रही बात टीम चयन पे, तो सवाल उठने लाजमी है, और जिसका अंदेशा था वो हुआ, और हमारी सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी इस मैच से पहले, और जिसका अंदेशा था वो हुआ वही. आखिरकार भारत की विदाई हुई इस विश्व कप से, और काफी खराब क्रिकेट खेल के, जहां न्यूजीलैंड 6 विकेट से मैच हारा था, 7 विकेट से मैच हारा था, भारत को 10 विकेट से वो करारी हार झेलनी पड़ी. जी, Absolutely rightly said. No doubt about it. The way India played, actually, अगर मैं सच बताऊं ना, तो भारत को ये मैच जीतना ही नहीं चाहिए था. जो क्रिकेट उन्होंने खेली, मैं कुछ आज ना सोच रहा था ऐसे ही बैठा बैठा, जब मैच भारत हारा तो मुझे लगा यार, मतलब ऐसा भी क्या था, ऐसी भी क्या जल्दी थी जो भारत
पता नहीं कहाँ जाना चाह रहा था। मुझे लगता है दिल्ली आने की वापसी जल्दी थी, या फिर मैं ना शब्द भी मेरे पास नहीं मिल रहे हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। कुछ ऐसे शब्द हैं जो मुझे बोलने नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। खैर, उस पर बाद में आऊंगा। ना अच्छा नहीं लगता है जब आप एक देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपके ऊपर तमाम लोगों की निगाहें होती हैं, कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कम से कम शोभा नहीं देता है। मैं मान सकता हूं कि टीम हारने के लिए जाती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने वो इंटेंट नहीं दिखाया जिस इंटेंट की हम हमेशा बात करते आए हैं। रोहित शर्मा ने पिछले 1 वर्षों में न जाने कितनी बार कहा होगा कि हम अपना टेम्पलेट बदल रहे हैं, हम T20 को T20 की तरह से ही खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया। और भारत की वही ढीली शुरुआत जो अक्सर हमेशा होती रही है T20 मैचेस में, 6 ओवर के बाद अगर आप 38 रन बनाएंगे और एक विकेट भी गवा देंगे तो मुझे लगता है ये कहीं से भी पावर प्ले के साथ तो कम से कम इंसाफ नहीं है, और भारतीय फैंस के साथ भी इंसाफ नहीं है। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप 6 ओवर में कम से कम 55-60 रन तो बनाएं, जैसा आपने इंग्लैंड को खेलते हुए देखा। 64 रन, 63 रन माफ कीजिएगा, बनाए थे उन्होंने, और बगैर किसी विकेट के। अगर ये स्थिति भारत की होती या यहाँ एक विकेट गिर भी गया होता तो मैं समझता हूं भारत शायद सुखद स्थिति में होता। और क्या आपको लगा कि भारत ने शुरू से ही इंटेंट या जिसे मैं कहूं टेम्पलेट एप्लीकेशन कुछ भी दिखाया नहीं? देखिए, आज का समय वो है, मैं फिर कहता हूं, अब पुरजोर मांग उठने लगी है कि भारतीय क्रिकेट में 3 तरह की टीम होनी चाहिए, 3 अलग अलग कप्तानों का चयन होना चाहिए। कि यदि आप टेस्ट मैच के खिलाड़ियों को आप T20 में खिलाएंगे तो वो टेम्पलेट आ ही नहीं सकता। मैं फिर कहता हूं, मैं भी उस बात का समर्थक हूं, द क्लास इज द फॉर्म इज द टेम्परेरी और क्लास इज द परमानेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वही चीजें बार बार करेंगे, और एक नई टीम होनी चाहिए। T20 के हिसाब से नई टीम होनी चाहिए। जब आप बाहर जाते हैं इस विश्व कप से पहले, या और भी आप यदा कदा 2 टीमें बार बार खिलाते रहे हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, या यूं कहूं अलग अलग फॉर्मेट के लिए आप अलग टीम क्यों नहीं निर्धारित कर सकते हैं? क्या अड़चने हैं? मैं फिर कहता हूं कि आज भारत ने काफी खराब क्रिकेट खेली, विशेषकर KL राहुल। ये 50 ओवर के आपके खिलाड़ी हो सकते हैं, मैच विनर हो सकते हैं, मगर T20 के मैच विनर मैं इनको नहीं मानता। मैं बार बार इनकी आलोचना होती रही है, आज भी होगी। लखनऊ जब मैच हारा, IPL में लखनऊ जायंट्स जब मैच हारा, वहां पे भी इनकी आलोचना हुई कि खराब सोच के साथ उन्होंने अंत किया उस पारी का, धीमी बल्लेबाजी। और आज मजबूरन विराट कोहली को भी फिर बंद के खेलना पड़ा। 40 गेंदों में 50 रन कतई सही नहीं है, वो बंद के खेलना पड़ा क्योंकि वो विकेट्स जल्दी खोए भारत ने। और उसका परिणाम ये हुआ, हार्दिक पांड्या के 33 गेंदों में 63 रन के बावजूद भी वो रन नाकाफी हुए। विराट कोहली का वो 50 आया, उसके बाद भी वो रन नाकाफी हुए, और एक करारी हार मिली भारत को पूरे 10 विकेटों से। फिर मैं कहना चाहता हूं, और मैं यदि मेरे इस शो को कोई कवर करे, मुझे नहीं लगता कि कोई सुनेगा, लेकिन यदि कहीं भी हमारी बात थोड़ी सी भी यदि किसी को माननी है, तो अब वो समय आ गया है कि T20 फॉर्मेट के लिए आपको एक नई टीम का इजाद करना चाहिए। आपके पास नए लड़के हैं, आपके पास नया टैलेंट है, आपके पास इतनी फौज है आपके पास। यदि आप जब चाहें तब चाहें, आप खुद कहते हैं कि हम कभी भी नई टीम खड़ी कर सकते हैं, तो आज वो समय आ गया है। कम से कम आप 140 करोड़ 150 करोड़ जो देशवासी हैं, उनकी भावनाओं को प्लीज आप आहत मत कीजिए। और ये समय ऐसा है कि सच में हम लोग क्रिकेट को एक धर्म से जोड़ते हैं,
क्रिकेटर को एक भगवान का दर्जा देते हैं। और आज ये हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हार होती है, न्यूजीलैंड हारा और भारत हारा। अब यदि सुपर 4 का आकलन करेंगे तो भारत चौथे नंबर पे आएगा। जी ठीक बोला आपने। मैं समझता हूं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का इस पर कोई ना कोई ठीक ठोस एक्शन लेना चाहिए। अदर देन दैट ना, एक दिन ऐसा शायद आए जब भारत को कहीं ऐसा ना हो कि T20 में 7वें 8वें 9वें नंबर की टीम बनना पड़े, क्योंकि वेस्ट इंडीज का हाल आप देख ही रहे हैं। वेस्ट इंडीज में क्या लगता है आपको टैलेंट की कमी है? ना, बिल्कुल भी नहीं। दे आर फुली इक्विप्ड विद टैलेंटेड प्लेयर्स, यू नो, they can beat any team on the given day. They are two-time world champion. But what is happening with them? You all are aware with the facts. How they have been eliminated from the Super 12 group. होना नहीं चाहिए था कायदे से। तो क्या ये स्थिति अगर यूं ही जस की तस बनी रही तो भारत का कहीं ये हश्र तो नहीं होने वाला? हाँ जी, नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये हश्र होएगा या होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं, मगर और ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, भारत को अब सोचने की आवश्यकता आन पड़ी है कि भारत जब बाहर 2-2 टीमें खिला सकता है बायलैटरल सीरीज के लिए केवल, तो एक अलग विशेष फॉर्मेट के लिए एक अलग टीम क्यों नहीं खेल सकती? मेरे मन में केवल यही बात कौंध रही है और यकीन नहीं हो रहा कि वो भारत, मैं फिर कहता हूं, हम केवल पाकिस्तान से हारने और जीतने पे यकीन रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये दृष्टिकोण जब तक हमारा नहीं बदलेगा, हम आज के मैच के बारे में नहीं सोच रहे थे। हम सब यही कह रहे थे भारत जाए, भारत फाइनल में पाकिस्तान से ना हारे। अरे भाई, और भी तो मैच हैं, केवल उसी से तो मैच नहीं है। हमें आज ये सोचने की आवश्यकता आन पड़ी है कि भारत को हर मैच सीरियसली खेलना होगा। और ये मैच तभी हम जीतेंगे जब, मुझे लगता है, एक हर फॉर्मेट के लिए एक अलग टीम, हर फॉर्मेट का एक अलग कप्तान और हर फॉर्मेट के लिए एक इच्छा शक्ति, एक दृढ़ संकल्प झलकना चाहिए पूरे सपोर्ट स्टाफ में कि हर फॉर्मेट के लिए हर टीम उपयुक्त है। क्या आपको कहीं से लगा कि राहुल द्रविड़ शायद T20 जैसे गेम के लिए उतने उपयुक्त कोच नहीं है, क्योंकि खुद उन्होंने कोई T20 गेम खेला नहीं है? मैं मान रहा हूं राहुल द्रविड़ एक महान खिलाड़ी रहे हैं, भारत की दीवार यूं ही नहीं कहा जाता, उन्हें टेक्निकली बहुत करेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या जो हम बार बार टेम्पलेट की बात करते हैं, टेम्परामेंट की बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं, क्या राहुल द्रविड़ से वो चीजें आपको मिल सकती है? अगर हाँ तो कब, और अगर नहीं तो दूसरा विकल्प क्या है? मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि 3 फॉर्मेट्स हैं, भारत सहित दुनिया भर के तमाम देश खेलते हैं, कुछ एसोसिएट नेशंस भी हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस विश्व कप में। तो मैं समझता हूं अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग टीम होनी चाहिए। ये मांग आज से नहीं, पिछले कुछ वर्षों से लगातार उठाई जा रही। जब से T20 क्रिकेट ज्यादा खेला जाने लगा है तब से ये मांग लगातार उठती रही है। और मैं समझता हूं भारत को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में, जब मैंने एक और शो किया था तब भी मैंने ये बात कही थी शायद, या आपने ही उठाई थी, कि अलग फॉर्मेट के लिए अलग टीम होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है जनाब। खिलाड़ी तो बहुत है आपके पास, बशर्ते उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मंच देने की जरूरत है। क्योंकि भारत के पास एक से एक खिलाड़ी हैं। यशस्वी जायसवाल को देख लीजिए, एक आध नाम आप भी अगर जोड़ सकते हैं, मयंक अग्रवाल अच्छे प्लेयर हैं, अभी हाल ही में यश धूल बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसंग जैसे प्लेयर्स को आप मौके नहीं दे रहे हैं, राहुल तेवतिया हैं, सब अगर मैं नाम गिनाऊं ना, बड़ी लंबी फहरिस्त है, काफी समय लग जाएगा। तो क्यों ना एक सिलेक्शन कमेटी बैठे, ट्रेनिंग हो, मैचेस कराए जाएं आपस में, जैसे इंडिया ब्लू ग्रीन रेड येलो के बीच में होते हैं मैचेस, उस तरह से करा के आप आईपीएल में उन प्लेयर्स के प्रदर्शन देखें। उसके बाद एक 11, 12, 15, 20 प्लेयर्स का जो भी है एक सेटअप लॉन्च करें और बोले जी ये हमारे T20 के प्लेयर्स हैं,
किसी भी T20 इवेंट में यही जाएंगे और इनका कप्तान ये है। और यही नहीं, केवल टीम नहीं, मुझे लगता है प्रति एक फॉर्मेट के लिए आपके पास अलग अलग सपोर्ट स्टाफ भी होने चाहिए, क्योंकि BCCI is an interesting kind of body. You know, they have got all the powers, all the money to invest in players. तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हर सपोर्ट स्टाफ अलग रखा जाए, हर फील्ड के लिए, हर फॉर्मेट के लिए कोचेज अलग अलग हो, और वही कोचेज हो, वही सपोर्ट स्टाफ हो जिन्होंने कम से कम उस फॉर्मेट में कुछ अच्छा किया हो। राहुल द्रविड़ टेस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मैंने जैसे पहले कहा, टेक्निकली बड़े करेक्ट प्लेयर हैं, उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है। वनडे भी बड़ा अच्छा खेलते आए, वैसी बात नहीं है, लेकिन T20 मैं अभी मानता हूं कम से कम उनकी शायद सोच से परे जा रहा है। जैसा इंग्लैंड ने आज आपको खेल दिखाया, मजबूर किया होगा राहुल द्रविड़ को सोचने में कि क्या हम भी ऐसे क्रिकेट खेल सकते हैं। कहां लगा आपको कि मैच पूरी तरीके से भारत के हाथ से निकल गया? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को लगता है राहुल द्रविड़ से ज्यादा रोहित शर्मा के ऊपर मैं एक बात करना चाहूंगा। राहुल द्रविड़ बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, मैं आऊंगा, मैं रोहित शर्मा पर भी जरूर आऊंगा, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ की जहां तक बात आई है कोचिंग की, तो मेरा अपना मानना है कि देखिए, मुझे कोच से कोई खास समस्या हुई नहीं है, और राहुल द्रविड़ बेहतरीन कोच हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप 2020 के स्पेशलिस्ट कोच को ढूंढने जाएंगे तो मुझे लगता है काफी दुश्वारियां होंगी, क्योंकि जो T20 शुरू हुआ है वो हकीकत में 2007 के बाद से या यूं कहें हम 2010 के बाद से, यानी ये जो दशक आया है, बीता जो दशक है, उस दशक को ही हम शामिल कर सकते हैं। 10 से 12 साल हुए हैं T20 को शुरू हुए। मुझे लगता है कि थोड़ा हमें राहुल द्रविड़ पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि समस्याएं ये है कि आप रणनीति तो बना लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये कप्तान इम्प्लीमेंट कर सकता है। आज खराब कप्तानी हुई कि मुझे नहीं पता और राहुल द्रविड़ से निर्देश मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं पता। जब आपने 2 ओवर कर लिए, पहला भुवी, दूसरा अर्श, तीसरा भुवी ने आई थिंक किया होगा जी, चौथा अक्षर पटेल को दिया, वहां पे अर्शदीप को क्यों बॉलिंग नहीं दी? क्या अर्शदीप से आप ये उम्मीद करते हैं वो हर मैच में पहले ही ओवर में विकेट ले? यदि ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है, और मुझे लगता है अर्शदीप को जल्दी बॉलिंग से हटाया गया और इसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा, और एक लंबी चौड़ी साझेदारी बुनी गई जिसने कि 10 विकेट से भारत को करारी हार दी और भारत को इस टूर्नामेंट से विदा होने पे मजबूर किया। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूं इस बात से। जब आपका एक प्लेयर लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा है तो मैं समझता हूं उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी करने का हक किसी ने आपको दिया नहीं। अर्शदीप एक जबरदस्त बॉलर है, अभी नया टैलेंट है, गर्म खून है, यंग टैलेंट है, यंग फ्रेश लेग्स आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है वो अगर अपना दूसरा ओवर लेकर आते, उस समय स्थिति कोई बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं थी। 3 ओवर में मुझे लगता है 31 रन के आसपास स्कोर था। 33 रन थी। हाँ, 33 रन, बिल्कुल माफ करिएगा। स्थिति बहुत नहीं बिगड़ी थी। अगर वहां पर भी एक आध विकेट मिल जाता ना तो स्थिति में परिवर्तन संभव था। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा की खराब कप्तानी, खराब सोच, कप्तानी को तो बाद में आप क्रिटिसाइज कर सकते, सोच अच्छी नहीं थी। और एक बात और, भुवनेश्वर कुमार जब अपनी एबिलिटी पर वो यकीन करते हैं, उसको बैक करते हैं, फिर आखिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि उन्हें विकेट कीपर को पीछे रखना पड़ा, कि जी आगे बुलाना पड़ा, सॉरी, कि जी थोड़ा आगे, या फिर फील्डर्स को अलग अलग दिशा में, जहां जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। जब आपको स्विंग पर यकीन है तो आप स्विंग कराइए ना, आपको इधर उधर के एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? वो आगे खिलाते, विकेट कीपर को ऊपर रखते, बुला के थोड़ा सा स्टंपिंग वगैरह के चांसेस बनते, क्योंकि
बटलर आपको याद है चलकर खेलते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। पहली गेंद पे जब पहले दूसरे में चौका लगा, उसके बाद एक दो गेंदें बड़ी अच्छी फेंकी भुवनेश्वर ने, ऐसी बात नहीं है, जबरदस्त गेंदबाजी थी शुरू में 1-2-4 गेंदों में। लेकिन उसके बाद ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे कोई मौके भी नहीं आए। एक आध अगर आया भी होगा तो भारत ने गवा दिया कह सकते हैं आप। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है इंग्लैंड ने भारत को टू बी वेरी ऑनेस्ट मौके दिए ही नहीं कि वो उस मैच में वापस आ सकें। कहीं से लग रहा था आपको कोई मौका था भारत को कि वो वापस आ जाए? हाँ नहीं, मौके तो नहीं थे। खैर हाफ चांसेस कुछ एक आध दो आए थे, जो एक खेल राहुल के बगल से गया और भी हाफ चांस हुए, लेकिन उनको हम चांस नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, यदि मैच में वापसी करनी है तो उन हाफ चांस को कन्वर्ट करना होता है, जो भारत नहीं कर पाया। और वेरी ऑनेस्टली आज भारत हार गया और इस टूर्नामेंट से विदा हो गया, और विश्व विजेता बनने का सपना भारत का दोबारा से चकनाचूर हो गया। अब क्या आगे क्या नजर आता है, भविष्य क्या है भारतीय क्रिकेट का और किन हाथों में जाएगा? क्योंकि देखिए पॉलिटिकली भी ना बहुत सारी चीजें होती हैं भारत में। जिसके पास पॉलिटिकल पावर है वही बोर्ड को संभालने लगता है। सौरभ गांगुली जैसे एक अच्छे जो सुधारक हो सकते थे, उनको आपने एक्सटेंडेड काम नहीं दिया। वही जय शाह को आपने एक बार फिर से सचिव बना दिया, जो मेरी समझ से कम परे है। और मेरा अपना हमेशा से मानना रहा है कि क्रिकेट में या प्रशासनिक समितियों में क्रिकेट की खास करके वो लोग होने चाहिए जिन्हें कम से कम क्रिकेट के बारे में ठीक ठाक नॉलेज हो, या जिन्होंने क्रिकेट खेला हो किसी लेवल पर। अब जय शाह के बारे में मैं बहुत नहीं जानता, अगर उन्होंने कुछ क्रिकेट खेला हो तो मुझे माफ करिएगा, जो भी सुन रहे हो, अगर उन्हें लगता है कि जय शाह एक बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है कुछ कि वो थोड़ा खेले हैं, कुछ बंगाल से कहीं से कुछ ऐसा कुछ उनका कनेक्शन है। मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, एक बार मैं बस ऐसे ही गो थ्रू कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ उस लेवल का क्रिकेट शायद उन्होंने नहीं खेला जिस लेवल के क्रिकेट की यहाँ पर जरूरत होती है। इट्स ऑल राइट कि उन्होंने कुछ कदम बड़े अच्छे उठाए मैनेजमेंट में, जब से वो है तब से कुछ अच्छे काम की भी चीजें की उन्होंने। लेकिन फिर भी मेरा अपना एज ऑलवेज मानना रहा है कि क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर ही चलाने चाहिए, उसमें कम से कम पॉलिटिकल लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इस तरफ कुछ देखते हैं आप? देखिए, जय शाह की जहां तक बात करूंगा तो कुछ जय शाह ने सबके साथ, समिति के साथ मिलके कुछ अच्छे काम किए हैं, आपने भी बताया, बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, बिल्कुल क्रिकेटर की समिति है तो क्रिकेटर्स के ही हाथों में होनी चाहिए। खैर रोजर बिनी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए हैं और उम्मीद करता हूं, और अभी मेरे जो कानों तक बात आई है सूत्रों के हवाले से, अभी सिलेक्शन कमेटी में भी बदलाव होना है। और अब मुझे लगता है पुख्ता तौर से बदलाव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजर बिनी भी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, और वो बदलाव होने भी चाहिए, होंगे। और अब ये सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड की, 18 तारीख से आई थिंक सीरीज है भारत न्यूजीलैंड की, उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। यदि जूनियर खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस मिलती है, और भारत बायलैटरल सीरीज वैसे भी अच्छी खेलता है, यदि उसमें भी और बेहतरी आती है बायलैटरल सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि आगे काफी लोगों पे गाज गिरने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। देखिए, मेरी जो अपनी सोच है वो यही है कि शायद अगले विश्व कप जो आने वाले हैं, चाहे वो 50 का हो या 20 का हो, मुझे लगता है इसमें से जो आज आपको चेहरे दिखे हैं उसमें से कई चेहरे ऐसे हों जो नजर नहीं आएंगे उन विश्व कप्स में, चाहे वो 50-50 हो या T20। 50-50 भी नजदीक है, 2023 में है। क्या उसके लिए भी भारत आपको प्रिपेयर नजर आती है? ओडीआई की तो मुझे लगता है एक सुदृढ़ टीम है भारत, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यही है ना कि हम नॉकआउट स्टेज पे जैसे ही पहुंचते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम खेलना भूल जाते हैं क्रिकेट। आप देख लीजिए, उठा के इतिहास गवाह है इन बातों का। 2013 के बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में बड़ा मेहनत मशक्कत करके भारतीय टीम ने एक तोहफा दिया था भारत को। इंग्लैंड में वो 1 बजे के बाद मैच शुरू हुआ, बरसात कटेल मैच था, वो जहीर खान वगैरह उसमें शायद खेल रहे थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी 2013 का मैच था वो, बिल्कुल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी थी
जिसमें शिखर धवन और रोहित शर्मा ने एक नया नया नाम बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल देखिए, T20 की टीम अच्छी है, इसमें सॉरी एक दिवसीय की टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी रही बात करंट सिचुएशन की, रही बात एन मौके की, तो मुझे लगता है हमें कुछ चीजें एक्सेप्ट भी करनी पड़ेंगी। हर टीम के पास एक एक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट था और पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी, ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क, न्यूजीलैंड के पास वोल्ट, लेकिन हमारे पास बुमराह नहीं थे। ये भी हमें थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बुमराह की एब्सेंस में यदि इस मैच को हम छोड़ दें तो अर्शदीप ने बुमराह की कमी को खलने नहीं दिया। मगर आप ये समझिए, यदि एक दिवसीय में बुमराह भी होंगे, अर्श भी होंगे, मुझे लगता है टीम में काफी फर्क पड़ेगा। 3 तेज गति के गेंदबाजों की बात करूं, अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, यदि इन तीनों गेंदबाजों के साथ भारत प्रशिष्ट करे भुवनेश्वर वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो कोई दौरा नहीं, स्विंगिंग कंडीशन में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं और उन्होंने की भी इस वर्ल्ड कप में, चाहे वो शामी हो, अर्शदीप हो या फिर भुवनेश्वर हो, इन तीनों ने बॉलिंग अच्छी की सिवाय इस मैच के, क्योंकि ये मैच एक ऐसा मैच था जो शायद भारत के लिए भूलने वाला है, लेकिन बहुत आसानी से इसको लोग भुला नहीं पाएंगे। 2019 का सेमीफाइनल आज भी याद आता है, कैसे न्यूजीलैंड ने भारत को बाहर कर दिया था। धोनी जैसे बैट्समैन क्रीज पर थे, उनका वो रनआउट जो नहीं होना चाहिए था, कायदे से डायरेक्ट हिट लगी थी, वो मार्टिन गप्टिल का थ्रो था शायद, सीधा के स्टंप्स में लगा और धोनी के जाते ही पूरी उम्मीदें बिखर सी गई और भारत उस टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। वो कौन भुला सकता है? 2007 का उलटफेर कौन भुला सकता है? 2003 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की हार को कौन भुला सकता है? कोई कुछ भूलता नहीं है, बशर्ते हाँ इतनी बात जरूर है कि कम से कम खिलाड़ियों को ये भूल जाना चाहिए। लेकिन भूलने का मतलब ये नहीं कि आप उस बात को भूल जाओ कि जी हम हार गए थे, आप ये भूल जाओ कि क्या हुआ। अगर ये याद रखोगे आप कि जी हम इनसे हार गए थे और खराब क्रिकेट खेल के हार गए थे, तो आप कुछ सीखोगे, क्योंकि इंसान ना अपनी भूल से ही सीखता है जनाब। यदि आपने भूल से भी कुछ नहीं सीखा तो शायद फिर आपको मतलब इंसान कहलाने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इंसान जो होते हैं वो भूल से सीखते हैं। और भारत क्रिकेट में एक अग्रणीय देश रहा है हमेशा से, खासकर 1975 के बाद कपिल देव की वो पारी जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भारत 19-20 रन पर 4-5 विकेट गंवा चुका था, 175 रन की वो इनिंग 5 हो गए थे। जी 17 पर 5 के बाद एक 175 रन की जबरदस्त पारी कपिल देव की आई। और कहते हैं ना भारत में जो भी बदलाव आए हैं ना वो मिनटों में आए हैं। आपको मैं याद दिलाता चलूं थोड़ी थोड़ी बातें, 1975 के बाद जब वो कपिल देव ने इनिंग खेली ना, भारतीय क्रिकेट बदल गई थी। 89 में वर्ल्ड कप हुआ, भारत ने कुछ नहीं किया, दौर आया था फिर उसके बाद। बिल्कुल 83 में उसके बाद आपने देखा भारत विश्व विजेता कैसे बना, अंडरडॉग्स थे, कोई भी चांस नहीं था भारत को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी भारत वेस्ट इंडीज को हराकर, और लक्ष्य भी कितना 188-89 के आसपास का जो रन था उसको भारत को डिफेंड करना था। एंड हाउ ब्यूटीफुली दे डिफेंडेड ऑन 25th of June 1983 is a day which can never be forgotten in the Indian cricket history as India lift the World Cup after very 8 years of a successive World Cup. So very first time is in 1893, and then in 2011, so after 28 years of time, India lifted another World Cup. But before that, it was T20 World Cup in 2007, to be honest. And India defeated not anyone. It was who? Pakistan in the last over when Misbah-ul Haq hit that shot and Srishant taken a beautiful catch of the bowling of जोगिंदर शर्मा। बिल्कुल जोगिंदर शर्मा। उसके बाद उनका नामो निशान कहीं आया नजर नहीं आया उसके बाद वो। जी हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है ना कि भगवान ने भी उन्हें एक मैच इसलिए खिलवा दिया कि जाओ जी ये जितवा दो, कम से कम अपने बच्चों को और पोतों को ये बता पाओगे, देखो जी ये वर्ल्ड कप जो हुआ था पहली बार इतिहास का T20 का, उसमें मैंने ना आखिरी बॉल फेंकी थी और आखिरी बॉल में मैंने मैच जितवाया था। उसके बाद से वो नजर नहीं आया। हाँ कुछ और कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैंने भारतीय पूर्व कप्तान, भारत के मशहूर विकेट कीपर और अपनी अहम जगह रखने वाले T20 में महेंद्र सिंह धोनी से मैंने
काफी कुछ सीखा, काफी कुछ नोट किया। उनका कहना था, देखिए जी, गलती होती है मगर गलती को एक बार से दोहराना नहीं चाहिए। और यही मैं भारतीय क्रिकेट को कहता हूं कि यदि भारत आज हारा है इंग्लैंड से, तो इस बात को ध्यान रखना होगा, इस बात को उन्हें अपने दिमाग में रखनी होगी कि आज हम हारे हैं, किस तरह से हारे हैं, क्या हमारी कमियां रही हैं। उन्होंने भी एनालाइज किया होगा, उनके पास विश्लेषक होते हैं, उनके पास वीडियो ग्राफिस्ट होते हैं, उनके पास सपोर्ट स्टाफ में सब कुछ होते हैं, सब लोग होते हैं, वीडियो कैमरा चलता है। तो ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। और मैं अब जो बीत गई सो बात गई, या यूं कहें बीती बात बिसारिए, है ना, हिम्मत न हारिए। तो ये कुछ कहावत है। वो गाना सुना होगा आपने ना, क्या से क्या हो गया। We were expecting India versus Pakistan clash in the final of the T20 World Cup on Sunday, but it was not written in the destiny of Indian cricket. That's why they have been blown away by England in the very crucial game, knockout game of the World Cup. So that's how Pakistan and England made it through in the finals. It will be Pakistan who will take on England on Sunday, November 13 at 1:30 p.m. in the afternoon as per as IST, Indian Standard Time. Toss will be at 1. Simply go and watch, listen. It's totally up to you. How do you want to enjoy your cricket? On Hotstar, enjoy the commentary of some great commentators like Vineet Garg, Sanjay Banerjee, and Sunil Ved, such as so many more commentators. Just download the application, click on the match, then there will be an option of logo. Click over there, then you are supposed to go in settings, and then there will be an option called follow in. So that's how you can simply listen to the commentary of Vineet Garg and other commentators. And now let's move on towards the question of the day. जी, आज का सवाल कुछ इस तरह से है कि T20 की हिस्ट्री में पाकिस्तान के एक ऐसे बल्लेबाज का आपको नाम बताना है जिन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत पारी में, यानी व्यक्तिगत स्कोर उन्होंने सबसे ज्यादा T20 की हिस्ट्री में अर्जित किया है, यानी जिन्होंने T20 की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रन बनाए हैं किसी भी एक मैच में। आपको ऐसे बल्लेबाज का नाम बताना है और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या सुधार देखना चाहते हैं। और भी काफी कुछ एक मैं चर्चा करना चाहूंगा। मेरे पास एक फोन आया था आज आदरणीय सुशीला रावत मैडम का नथुपुरे से। उन्होंने भी तारीफ की है कार्यक्रम की और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है ये, और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास विशेष फोन आया तो मैंने, काफी फोन आए लेकिन मैंने मोटे मोटे तौर से आपको बताया कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने अपनी राय दी है और उनको कमेंट बॉक्स में लिखने में समस्या हो रही थी, फिर मैंने उनको बताया। तो उम्मीद है ऐसे और भी लोग होंगे, तो जिनको कमेंट बॉक्स में समस्या हो लिखने में, मैं उनके लिए दोबारा बता दूं, जो प्ले वीडियो आएगा उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। प्ले वीडियो के बगल में HTTPS आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वो आपको YouTube पे ले जाएगा, प्रोग्राम चलेगा, वहां से आप लाइक भी कर सकते हैं। आप लाइक कीजिए, उसके बाद आगे आप देखते आएंगे, सब्सक्राइब आएगा, उसके बाद डाउनलोड और भी काफी ऑप्शन आएंगे। फिर उसके बाद आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां पे ऐड ए कमेंट आएगा, ऐड कमेंट में क्लिक करेंगे, वहां कीबोर्ड खुल जाएगा, वहां से आप कमेंट हमें कर सकते हैं। बाकी आज की मैच की काफी चर्चा हो गई है। खैर, अब जो बीत गई सो बात गई। जीवन का एक सितारा था, तो अब मुझे लगता है कि हमें आगे सोचने की आवश्यकता है, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो भी फैसला लेगा बहुत सोच समझ के, बहुत हिम्मत के साथ और कुछ कड़े फैसले भी लेने की उम्मीद है। हम आपके साथ यूं ही
बने रहेंगे रेडियो टशन यूट्यूब चैनल के साथ। हम कार्यक्रम लाते रहेंगे खेल की बात रेडियो टशन के साथ। तो इस अंक में बस इतना ही। आप हम दोनों को आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।